Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. So today, Sahila ma'am is back with the same lesson. Today we are going to continue with the same lesson. Okay, that is lesson 4, mouse. Today we will start with our page number 26, on which we are going to study about the pointer and using a mouse, and then we will move on to the next topic one by one. Okay, so lesson 4, mouse. Okay, on page number 26 we are going to read today. In previous class we have learned about mouse pad, parts of mouse and holding a mouse, है ना? So in this class you are going to see the next one. So everyone take out your book, open page number 26, and I am going to read from here. Okay, so all of you keep your finger where ma'am is reading. So we first place our palm on the mouse gently, then we put finger 2 on the left mouse button and finger 3 on the right mouse button. ओके सो जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, मैम ने आपको बताया था माउस ड्रॉ करके कि आपको माउस पे कैसे हाथ रखना है ना. वंस अगेन आई विल ड्रॉ इट. See how you hold your hands. You will hold, first of all, what you will do, you will place your palm slightly gently on a mouse, and then you will keep your second finger, that is this one, index finger, you will keep on left mouse button, and you will keep your third, that is middle finger, on right mouse button. Okay, so this is the way you have to hold your mouse. Then whenever you need to scroll your scroll button, you will use your index finger only to scroll the wheel. Okay, so this we have already studied in previous class. Again two images are shown जिससे आप अच्छे से clearly देख सकते हो. देखो कैसे पकड़ा हुआ है. Similarly as ma'am told you, right? And this is the scroll button. You have to use your index finger to scroll this wheel. This is your right button, this is your left button. Okay, is that clear everyone? Now see, an important point to remember is given. A mouse should always be placed in such a way that its buttons should point towards the computer. The mouse should not be turned sideways. Okay? अब देखो एक और चीज, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, whenever you keep your mouse move, suppose this is your computer, this is your monitor, है ना? And this is your keyboard, and this is your mouse, and also this is your CPU, suppose, है ना? तो आपका माउस हमेशा किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होना चाहिए, किसकी तरफ देख रहा होना चाहिए? हमेशा इट शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर कंप्यूटर, योर मॉनिटर एंड योर कीबोर्ड. इट शुड नॉट बी लाइक दिस, है ना? आपको आपका माउस कभी भी ऐसे नहीं रखना है. माउस कभी भी ऐसे नहीं रखना है, आपको हमेशा ऐसे रख के यूज करना है उसे. Is that clear everyone? Okay. Now, do you know a left-handed child will hold the mouse using his left hand and a right-handed child will hold the mouse with his right hand? और आपको ये भी पता होगा कि अब खैर ये तो छोटी सी जनरल नॉलेज की बात है, ये बुक में जो दिया हुआ है इसका कोई नीड नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि हो सकता है आप लोग भी बच्चे हो तो आप लोग कोई कन्फ्यूजन हो, इसलिए आपकी बुक में दिया हुआ है. अब अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो, अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो, आपका सब कुछ लेफ्ट हैंड से होता है और आपको पूरा पकड़ इस हाथ से होता है, तो व्हाट यू डू, यू विल होल्ड इट लाइक दिस, राइट? यू विल होल्ड इट लाइक दिस. तो आपको ये भी एक प्रॉब्लम आएगी, है ना? तो जो लेफ्ट हैंड के बच्चे हैं उन लोग के फिंगर्स भी चेंज होंगे. जैसे कि राइट हैंड जो बच्चे यूज कर रहे हैं वो लोग का इंडेक्स फिंगर लेफ्ट पे और मिडिल फिंगर राइट बटन पे होगा और वो स्क्रॉल भी इंडेक्स फिंगर से करेंगे. लेकिन अगर कोई बच्चे का लेफ्ट हैंड है तो ही विल होल्ड इट लाइक दिस, है ना? एंड हिज इंडेक्स फिंगर विल बी ऑन राइट बटन एंड मिडिल फिंगर विल बी ऑन द लेफ्ट बटन, बट ही कैन इजीली स्क्रॉल विद हिज इंडेक्स फिंगर इफ ही इज हैविंग दैट व्हाट यू से, if he is having that control on his hands and the mouse, है ना? So it depends on the child which hand he is using, है ना? जैसे कि आप हैंड जो भी चेंज करोगे उस हिसाब से आपके फिंगर्स भी चेंज होंगे अलग अलग बटन्स.
Is that clear, everyone? Okay. Now we'll move on to the next. है ना? What is it? Mouse pointer. When the computer is on, we see an arrow on the monitor. It is the mouse pointer. When we move the mouse, the pointer also moves in the same direction. ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना? मैंने बिगनिंग में आप लोगों को बताया था, माउस है, माउस को आप मूव कर रहे होते हो तो साथ में यहाँ पे एक पॉइंटर भी मूव कर रहा होता है, राइट? एक एरो आप लोग देखते हो, आपने राइट में माउस ले गए तो पॉइंटर भी राइट में जाएगा, आप लेफ्ट में ले जाओगे तो वो राइट लेफ्ट में जाएगा, आप डाउन wherever you take your mouse, in the same direction the cursor will also move, है ना? We can call it cursor, pointer, anything. Okay? Now using a mouse. अब देखो माउस को यूज कैसे करना है ये बताएंगे, है ना? सो आप लोग को ये कर्सर तक समझ में आया है ना? माउस को जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कर्सर भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे एक एरो आपको सबको दिखेगा, आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो आप लोग देख सकते हो, है ना? देन द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग अ माउस. First is we use the mouse by pressing its buttons. When we press and release the mouse button, we call it clicking. When we click the left button of the mouse, we call it left click or simply click. क्या होता है? When we use mouse by pressing its buttons, क्या होता है? आप जब माउस यूज कर रहे होते हो आप बटन्स को प्रेस करते हो, वैसे ही यूज करोगे, है ना? सिर्फ मूव करने से आपका काम तो होगा नहीं, आपको कुछ सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है ना? तो क्या करोगे आप? यू हैव टू क्लिक ऑन द बटन. फॉर दैट यू हैव टू मूव इट, है ना? According to the respective place, if you are supposed to click here, you have to move this mouse first and you have to bring your cursor on the point and then you will click on the button, है ना? क्या करोगे? आपको जिस पॉइंट पे जाकर क्लिक करना है, कोई चीज़ को सेलेक्ट करना है, वहाँ ले जाकर आप कर्सर रखोगे, उसके बाद आप बटन पे क्लिक करोगे, है ना? और क्लिक करने के लिए when we click on the left button, जब हम लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट क्लिक या सिर्फ क्लिक बोलते हैं. ओके, नाउ क्या करते हैं, कैसे क्लिक करते हैं ये भी बता दें, है ना? आपने ये माउस होल्ड कर रखा हुआ है, आपने लेफ्ट बटन को क्लिक किया, क्लिक करने के लिए क्या करोगे? इसको प्रेस करके होल्ड करके रिलीज कर दो, इसको प्रेस करके ऐसे रिलीज, ऐसे प्रेस किया देन रिलीज, प्रेस किया देन रिलीज. दिस इज व्हाट वी कॉल क्लिक. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, व्हेन वी क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस वी कॉल इट राइट क्लिक. और वैसे ही जैसे आप राइट बटन को प्रेस करके रिलीज करते हो उसको भी हम क्लिक कहते हैं और राइट क्लिक भी कहते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सिंगल क्लिक मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस एंड रिलीजिंग इट. अब इस बटन को बेसिकली क्या होता है, क्लिक करने के लिए कभी कभी आप लोग 2 टाइम्स क्लिक करते हो, कभी 1 टाइम क्लिक करते हो. तो जब आप एक बार जस्ट प्रेस करके लेफ्ट कर देते हो बटन को तो उसको अपन सिंगल क्लिक कहते हैं, और जब आप 2 बार उसको प्रेस करते हो तो व्हाट विल कॉल डबल क्लिक, है ना? तो डबल क्लिक क्या होता है? हम राइट से भी करते हैं, लेफ्ट से भी करते हैं, है ना? इट डिपेंड्स ऑन द यूज दैट वी नीड, है ना? क्या होता है, जब भी आपको कर्सर को मूव करके कोई चीज़ सेलेक्ट करना होता है, कभी कभी आपके एक सिंगल क्लिक से सेलेक्ट हो जाता है, कभी आपको डबल क्लिक करना पड़ता है, लेकिन इसका भी डिफरेंस है ना? तो देखो, आप सिंगल क्लिक कब करते हो? जब आपको कोई चीज़ सेलेक्ट करना हो, है ना? जैसे अभी मैंने यहाँ पे मेरी लिस्ट बनी हुई है ना, बच्चों के नाम की लिस्ट बनी हुई है. अब इसमें से मैं जिस बच्चे के नाम पे भी क्लिक करूँगी वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर उसके बाद मुझे उस बच्चे की डिटेल्स भी ओपन करनी है तो वो यहाँ पे साइड में एक बॉक्स खुलेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ओपन करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा. आई बात समझ में? क्या करते हैं हम, जब किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना हो तो हम कर्सर को उसके ऊपर ले जाके रख के लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करके रिलीज कर देते हैं, दैट इज सिंगल क्लिक, तो वो सेलेक्ट हो जाता है ना? तो उसके राइट साइड में एक लाइट कलर का बॉक्स बन जाता है. एंड इफ यू वांट टू ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल यू हैव टू डबल क्लिक द लेफ्ट बटन, है ना? 2 बार आपको प्रेस करके रिलीज करना पड़ता है, उस चीज़ को हम डबल क्लिक कहते हैं. तो उससे क्या होता है, कोई भी सिलेक्टेड फाइल सेलेक्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. ओके, नाउ डू यू नो a single click selects an item and a double click opens an item. Releasing the mouse button after dragging is called dropping. देखो अभी मैं हमने बताया आपको सिंगल क्लिक करने को हम सेलेक्ट करना कहते हैं और डबल क्लिक करने को ओपन करना कहते हैं, राइट? और वैसे ही रिलीजिंग द माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग इज कॉल्ड ड्रॉपिंग. अब कोई चीज़ को आपने सेलेक्ट किया, इस पर सेलेक्ट किया माउस करके,
अब उसको सेलेक्ट करके आपने रिलीज तो कर दिया, लेकिन वहीं अगर आपने इसको एरो को एक पॉइंट पे ले जाके रख के प्रेस किया और रिलीज नहीं किया तो वो सेलेक्ट हो गया और उसको आप ड्रैग करके यानी कि माउस को ऐसे खींच के आप राइट में ला रहे हो तो कर्सर भी राइट में आ रहा है और उसके साथ जो सेलेक्टेड फाइल है वो भी राइट में आ रहा है। अगर लेफ्ट में ले जा रहे हो तो लेफ्ट में जा रहा है। वैसे ही आप उसको ड्रैग करके ऐसे लेकर आ रहे हो और उसको छोड़ दे रहे हो, उस जगह पे उसको छोड़ने को कहते हैं ड्रॉपिंग, है ना। अब इसको मैं आपके डेली लाइफ से कनेक्ट करके बता दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। सपोज आपको डाइनिंग टेबल पे या फिर आपकी स्टडी टेबल मानो जहाँ आप बैठ के पढ़ाई करते हो, आपकी बुक्स रखी हुई है बहुत सारी, है ना। एक बुक आपकी बहुत थोड़ी डिस्टेंस पे रखी हुई है, आपको उसको शिफ्ट करके आपके राइट साइड पे यहाँ पे ला के रखना है, वो उतने दूर पे रखा हुआ है। तो क्या करेंगे, यू विल सिंपली पिक इट अप एंड यू विल कीप इट हियर, है ना। अदरवाइज एक और चीज़ क्या होता है, आपके पास ऐसे खींच के उसको लाते हो, ऐसे ला के यहाँ पे छोड़ देते हो, उसके बाद आपने हाथ रख दिया तो व्हाट हैपेंस, यस इट हैपेंस लाइक आपने उसको ड्रैग करके लाया एंड यू ड्रॉप्ड इट हियर एंड यू रिलीज्ड, है ना। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, ड्रॉपिंग, है ना। ये चीज़ हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, माउस यूज करके जो करते हैं, है ना। अभी बेटा मैं आपको कितना भी बताऊंगी, आप लोग जब तक प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करोगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टेल यू व्हाट इज इट, है ना। अगर जिसके पास कंप्यूटर लैपटॉप है प्लीज बेटा ट्राई टू प्रैक्टिस दिस एट योर होम सो दैट यू कैन क्लियर इट प्रॉपरली, ओके। नाउ द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27, क्लिक एंड ड्रैग। अभी जो हमने पढ़ा था ड्रॉपिंग उससे रिलेटेड ही है क्लिक एंड ड्रैग, है ना। वी फर्स्ट प्रेस द लेफ्ट बटन, कीपिंग इट प्रेस्ड वी मूव द माउस, pressing the left button is click and moving the mouse while keeping the left button pressed is drag, है ना। क्या बोला है, we first press the left button, सबसे पहले आप क्या करते हैं, लेफ्ट बटन को प्रेस करते हो, कीपिंग इट प्रेस्ड उसको छोड़ते नहीं हो, ऐसे पकड़े रख के ही we move the mouse, क्या करते हैं हम उसको मूव करते हैं, और pressing the left button is click and moving the mouse while keeping the left button pressed is drag। अब देखो डिफरेंस है बेटा दोनों चीज में, जैसे हमने पहले अभी पढ़ा था उसको क्लिक करके छोड़ देने को क्या कहते हैं, उसको प्रेस करके छोड़ देने को क्लिक कहते हैं, लेफ्ट क्लिक। वही आप प्रेस करके छोड़ोगे नहीं और माउस को ऐसे पुल करोगे और साइड में खींच के लाते हो तो उसको क्या कहते हैं, ड्रैग, है ना। व्हाट विल कॉल इट, ड्रैग, है ना। जैसे कि अभी मैंने बुक को उठाया और छोड़ दिया, ठीक है, आई पिक्ड इट अप एंड देन आई ड्रॉप्ड इट। The same time if I drag it, है ना, like this and then I'll drop it, so what we will call it, drag, है ना। इसको ऐसे खींच के लगे हैं छोड़ने को क्या कहते हैं, ड्रैग, है ना। वैसे ही आप अगर एक बार क्लिक करते हो तो उसको सिर्फ क्लिक कहते हैं या लेफ्ट क्लिक कहते हैं एक बार प्रेस करने को, लेकिन अगर प्रेस करके छोड़े बिना माउस को ऐसे खींच के लाते हो उसको क्या कहते हो, ड्रैग, ओके। नाउ एक्टिविटी टाइम, आपको एक स्मॉल एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको क्या करना है, सर्कल द वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू अ कंप्यूटर माउस। अब इसमें से जो वर्ड्स आपके माउस को रिलेट करते हैं आपको उन वर्ड्स को सर्कल करना है, ओके। सो लेट अस सी व्हाट आर दोज वर्ड्स। पेज नंबर 27, okay, we are doing the activity time. So see, आपको क्या करना है, सर्कल the words which are related to a कंप्यूटर, ओके। ऐसे वर्ड्स बताओ जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, है ना। सो द फर्स्ट वन इज ड्रैग, देन बटन। मैम पहले आपके सारे वर्ड्स लिखेंगी उसके बाद सर्कल करना होता है, ठीक है। डांस, बर्न, ड्रिंक,
scroll wheel, drag, wire, click, पॉइंटर। आपको इतने वर्ड्स आपके बुक में दिए हुए हैं लाइक दिस। यहाँ देखो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इसमें से जो वर्ड्स माउस को रिलेट करते हैं उन पे सर्कल करना है। ओके, सो ड्रैग, माउस से हम ड्रैग कर सकते हैं, यस, सो विल सर्कल इट। ओके, बटन, माउस में बटन होते हैं, यस, तो हम इसको सर्कल करेंगे। डांस, माउस डांस करता है क्या? नो, सो विल नॉट सर्कल इट। नाउ बर्न, माउस जलता है क्या? नो, है ना। देन ड्रिंक, माउस ड्रिंक करता है लेकिन ओरिजिनल माउस है ना, दैट वी सी एट आवर हाउस और आउटसाइड देयर, है ना, बट दैट्स नॉट द रियल वन। वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माउस, है ना। सो इट डज नॉट ड्रिंक, तो उसको छोड़ दो। नाउ स्क्रोल व्हील, आपके माउस में स्क्रोल व्हील है, यस, सो व्हाट विल डू, विल सर्कल स्क्रोल व्हील। नाउ क्राई, व्हाट इज इट? क्राई, माउस रोता है क्या? नो, सो विल नॉट सर्कल इट। नाउ वायर, माउस में वायर होते हैं, यस, सो विल सर्कल वायर। क्लिक, माउस से क्या करते हैं हम? क्लिक करते हैं, तो ये भी माउस से रिलेट होता है, विल सर्कल क्लिक। पॉइंटर, पॉइंटर होता है माउस में, यस, इस तरह का एक पॉइंटर देखते हैं हम लोग स्क्रीन पे, ये किसको डिनोट करता है? माउस को, है ना, सो विल सर्कल पॉइंटर ऑल्सो, है ना। सो व्हाट ऑल वर्ड्स आर रिलेटेड टू माउस? ड्रैग, बटन, स्क्रॉल व्हील, वायर, क्लिक, पॉइंटर, इतने वर्ड्स को आपको सर्कल करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज मूविंग अप एंड मूविंग डाउन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। बेटा ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा अभी, है ना, आप लोगों को बहुत सारा आज पढ़ लिया अपन ने, माउस यूजिंग, माउस का पॉइंटर एंड ऑल दैट। सो मैम चाहती है कि आप लोग पहले इतना अच्छे से पढ़ो, उसके बाद विल मूव ऑन, विल गो स्लोली, है ना। सो अब तक हमने क्या पढ़ा है? माउस पैड पढ़ा है, माउस के पार्ट्स पढ़े हैं, है ना, वायर पढ़ा है, दैट इज टेल, देन होल्डिंग अ माउस, माउस को कैसे पकड़ते हैं, लेफ्ट हैंड वाले बच्चे कैसे पकड़ेंगे, और माउस को कैसे क्लिक करते हैं, हाउ टू यूज अ माउस, माउस का पॉइंटर क्या होता है, इसे हम माउस का पॉइंटर कहते हैं। इसके अलावा माउस में सिंगल क्लिक और डबल क्लिक क्या होता है, और सिंगल क्लिक से क्या होता है, डबल क्लिक से क्या होता है, और क्लिक एंड ड्रैग क्या होता है, ड्रॉपिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा है ना। इसके बाद हमने एक एक्टिविटी की है जो माउस को ही बिलोंग करता है। सो आज हमने इतनी चीज़ें पढ़ी है, इन चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है। This and you also have to read the lesson as far as I have taught, that is up to click and drag। यहाँ तक आपको रीड करना है at least 3 times, सिर्फ एक ही पेज है ना, और आपको ये एक्टिविटी करनी है। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। ट्राई टू read the lesson 3 times with proper pronunciation. Also try to learn the difficult words. Okay, good day everyone.